تم لوگ کہتے ہو کہ انڈیا میں ہمیں 3 طلاقیں بین کرنی ہے. ابے 3 طلاق کو گولی مارو, ہر چیز میں تو طلاق ہو جاتی ہے اسلام میں. کون سی چیز ہے جس میں طلاق نہیں ہوتی؟ اینجل جی آپ ایک لڑکی ہیں, مجھے بتائیں ذرا اس بات پہ. گھر میں آپ چولہے پہ کھانا بنا رہی ہیں, آگ بھڑک جاتی ہے, گھر سے باہر نکلے آپ کو ڈیورس ہو جائے گی اگر آپ کے خاوند نے کہا کہ کبھی گھر سے باہر میں مرضی کے بغیر قدم نہ رکھیں. جی کیا ہے یہ؟ بکواس ہے. کوئی اپنا جان دیکھے یا اس کا ڈر لے کر بیٹھے طلاق کا. ہم تو پہلی فرصت میں نکل لے بھائی. تو آپ کو ڈیورس ہو جائے گی اگر ہسبینڈ نے آپ کو کہا ہے کہ میری مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا, ورنہ ڈیورس ہو جائے جی گی. ہاں, اور اگر میرے حساب سے تو ایسا مطلب ان کا جیسا نیم ہے اور شریعہ ہے تو اس حساب سے اگر پوٹی بھی لگ جائے تو کہے گا اگر اس کا من کرے مومن کا کہ اگر تو نے پوٹی کیا تب بھی تمہیں طلاق دے دے گا, تو آدمی پوٹی بھی نہ کرے. کوئی بھی کنڈیشن لگا سکتا ہے, کنڈیشنل ڈیورس ہے نا. جی When a husband makes a divorce conditional on one of his own acts, اپنے عمل کے اوپر بھی کنڈیشنل ڈیورس کر سکتا ہے وہ. کیا؟ But then does the act not remembering that he had made a condition, or does the act because he is forced to, the wife is not divorced. اب اگر وہ اپنے اوپر کوئی عمل کرتا ہے کہ میں نے اگر یہ عمل کیا تو تجھے ڈیورس ہو گئی, لیکن وہ عمل اچھا مجبوری میں کرتا ہے تو پھر نہیں ہوئی ورنہ ہو گئی. مجبوری میں کرتا پھر نہیں ہوئی, اور اگر بغیر مجبوری کرتا تو ہو گئی. اچھا جیسے کہ وہ مان لیجیے ہسبینڈ اگر کسی سے افیئر چلا رہا ہے اپنے مرضی سے ہے نا, تو اس میں ڈیورس ہوگا وائف کا, ہے نا. وہ کہتے اور ہیں کہ اگر وہ اگر میں نے کسی اور سے افیئر چلایا تو تجھے ڈیورس ہو گئی, اور اگر ہاں اس نے کسی اور مطلب سے کہ افیئر چلایا تو اس کی افیئر, ڈیورس ہو گئی. جی افیئر مرد چلائے اور ڈیورس اس کو ہوگا, ٹھیک. اور اگر ہاں وہ مجبوری میں کیا کرے گا, وہ پھر بھی تب نہیں ہوگا. مجبوری تب بولے نہیں تو ہوگی. ہاں مجبوری وہ کر کے آ گیا اور اس سے پوچھا جائے تو وہ بولے کہ مجھ سے غلطی ہو گیا یا پھر مجبوری میں ہو گیا, تب بیچاری وہ رہ جائے. ہاں پھر کیا رہ جائے گی. ہے یار, جی ایسا ہے, بکواس ایک دم. یہ انڈیا میں چاہیے مسلم عورتوں کو. بی بی کیا کہتی ہیں آپ؟ یہ پاگل ہے. یہاں پہ بیٹھتا ہے نا محمد صاحب کا یہ لاجک کہ وومن ہاف عقل ہوتی ہے, تو جتنی مومنہ ہے نا وہ ہاف عقل ہی ہے اب تک. ابھی دیکھ لیتے ہیں. When the husband جی makes a divorce conditional on another person act, کسی تیسرے بندے کے ایکشن کے اوپر ڈیورس کرتا ہے. کیسے؟ Such as by saying, if so and so, اگر ساجد enters the house, گھر میں داخل ہوا, you are divorced, تمہیں طلاق ہو گئی. And that person enters before or after he knows its condition, اور وہ بندہ داخل ہوتا ہے اس کنڈیشن کو جانے بغیر. Whether remembering it or not, then if the person named is not someone who would mind if they were divorced, meaning it is no problem for him if it happens, then he would not be sentient, and it did because of the lack of that friendship from them, then the wife is divorced. میں اپنی بیوی کہتا ہوں اگر ساجد اس گھر میں داخل ہوا تو تمہیں طلاق ہو گئی, اور ساجد کہتا ہے میرے ٹھلے کو ٹھن میں تو جاؤں گا, تو ڈیورس ہو گئی بیوی کو, جاؤ. اس میں بھی مطلب غلطی اس لڑکی کا نہیں ہے نا, غلطی اس کے ہسبینڈ کا ہے اور دوسرا وہ آنے والا بندہ کا ہے. اور ڈیورس کس کو ہو رہا ہے, وائف کو. لڑکی کو. بھگت کون رہی ہے, وائف. لیکن اگر بندے کو کنڈیشن کا پتا ہے and enters forgetful, then he is someone who would mind, then the wife is not divorced. لیکن اگر ساجد کو پتا ہے اس بات کا اور وہ غلطی سے داخل ہوا ہے, پھر ڈیورس نہیں ہوئی, ورنہ ہو گئی. مطلب ہر حال میں لڑکی کو ہی ڈیورس ہوگا اور اس کو ہی مطلب کہ جھیلنا پڑے گا, ہے نا, بھائی چاہے وہ ہسبینڈ کے غلطی کسی پاس کا بھی ہو. ہسبینڈ کے پاس فل کنٹرول ہے, اس کی خرید ہے. میں یہی تو بتا رہا ہوں, اسلام میں شادی ایک خرید ہے. اس نے اجرت دے دی ہے, اس نے خرید لیا, یہ اس کی خرید ہے. If the husband tells his wife, اگر husband بیوی کو کہتا ہے if you enter that house, تم اس دوسرے گھر میں داخل ہوئی, you are divorced,
and she is subsequently divorced from him with a finalized divorce, after which he remarries her and she enters the house, then she is not divorced. ये एक और गेम ऐसे छोड़ते हैं. खुला को मैंने एक्सप्लेन कर दिया पहले, मैं इसको स्क्रिप्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ. डाउट्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैं इसको स्क्रिप्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ. डिवोर्स को वापस लेना, डिवोर्स को वापस कैसे ले सकते हैं? यहां पे साजिद भाई की कुछ बातें आएंगी. इन द सेक्रेड लॉ, इस्लामिक शरिया के अंदर, इट मींस रिटर्निंग ऑफ अ वुमन हु इज हर वेटिंग पीरियड फ्रॉम एन अनफाइनलाइज्ड नॉन थ्री फोल्ड डिवोर्स ऑफ द स्टेट ऑफ मैरिज. आप अपनी बीवी को वापस ले सकते हो तब जब आपने इंटेंशनली 3 डिवोर्स नहीं दी, इंटेंशनली 1 या 2 डिवोर्स दी है, फिर वापस लेना है तो कैसे लेना है वो बताने लगे. When a free man pronounces divorce upon his wife once or twice, एक या 2 दफा उसने सिर्फ कहा है, after previously having had sexual intercourse, जिससे पहले उसने sexual intercourse किया था with her, then if the divorce is not for compensation, he may take back her at any time before the end of the waiting period, whether she wishes to return or not. चाहे वो वापस आना चाहे, चाहे ना आना चाहे, वो ले सकता है. So, एंजल जी, मैं आपके ऊपर एग्जांपल करने लगा हूं. सपोज आप जी मेरी जी बीवी हो, मैं आपको 1-2 तलाक देता हूं, आपके घर में भेज देता हूं, उसका दूसरी तलाक भी भेज देता हूं, अब मैं तीसरी नहीं भेज रहा और मैं कह रहा हूं वापस आ भाई. अब आप आना चाहोगी? कभी नहीं आना चाहोगी. आप कहोगी मेरे हस्बैंड ने 2-2 तलाक दी, मैं क्यों आना चाहूं? तो चाहे तुम आना चाहो ना आना चाहो, तुम अभी मेरी बीवी हो, तुम्हें वापस आना पड़ेगा. अच्छा, मतलब जबरदस्ती है. और क्या, तो मेरी मलकियत हो, मैंने तुम्हें पैसे देके खरीदा, उजरत नहीं दी हुई शादी करने से पहले. इसीलिए तो एडम भाई मुझे लगता है जब स्टार्टिंग होता है ना तो इसीलिए ये लोग ऐसा करते हैं कि पहले ही मतलब ये मन में ये ठान लेते हैं कि भाई भले ही वो लड़की सोच रही होती है कि हम इससे निकाह कर रहे हैं, मुझे इसके साथ लाइफ गुजारनी है, लेकिन जो हस्बैंड होते हैं वो पहले ही मन में ठान लेता है जब वो सिग्नेचर करता है ना, और वो क्या बोलते हैं उसको, मेहर जब वो लिखता है कि इतना में इतना दे रहे हैं, है ना, वो लिखा जाता है ना उस पे निकाहनामा पे, तभी वो मन में सोच लेता है कि बेटा हम तुमको खरीद रहे हैं, ठीक है, तुम मेरी वाइफ ना होकर तुम एक प्रॉपर्टी हो जिसको हम खरीद रहे हैं, जब मन चाहेगा तुमको बस यूज करके हम फेंक सकते हैं. उसके मन में ये चीज पहले ही तय रहता है. अगर तय ना रहे तो मेरे हिसाब से ये चीज ये रस्म होना ही नहीं चाहिए. अगर मन में ये चीज नहीं चल रहा है तो हम अपनी पूरी जिंदगी आपको सौंप रहे हैं, आप 10,000 रुपया सौंप रहे हैं, इसका क्या मतलब है? क्या मेरी नहीं, जिंदगी की कीमत 10,000 रुपया है? इससे भी ये कम. नियम ही क्यों है? इस्लामिक शरह, मैं तो वो दिखा रहा हूँ, जी मैं तो दिखा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है, लिखी परत में है. इफ द हस्बैंड और द वाइफ डाइज, अगर एक मियां बीवी मर जाती है ड्यूरिंग द वेटिंग पीरियड, डिवोर्स के वेटिंग पीरियड में, बिफोर थ्री फोल्ड डिवोर्स, तीन तलाकों से पहले, देन द स्पाउस इनहेरिट्स हिज और ऑब्लिगेटरी शेयर, क्योंकि अभी तलाक पूरी नहीं हुई लिहाजा उसको पूरा शेयर मिलेगा. When a divorce occurs before the husband has made love to the wife or afterwards for compensation from her, then he may not take her back. ये भी छोड़ देते हैं. Returning the wife to the marriage is only valid by explicitly stating it, such as by saying, I return her, I take her back, or I retain her. मैं इसे संभाल लेता हूं, मैं इसे वापस ले लेता हूं, मैं इसको वापस लेता हूं. तो अगर आपने डिवोर्स दिया है तो आप उसको 2 डिवोर्स से दिए या 1 डिवोर्स दिया तो इस तरीके से वापस ले सकते हैं. It is not a necessary condition, but is sunnah to have the return attested by witness. लेकिन ये अच्छी बात है कि आप उस वक्त 2-3 विटनेस गवाहों के सामने उसे वापस लें. When a husband takes a wife back, she returns with whatever number of time staying I divorced you. 2 तलाकों के बाद आपने उसे वापस लिया ना, तो अब 2 तलाकें उसके ऊपर पड़ चुकी हुई हैं, अब एक रह गई है. अनलेस वो दोबारा शादी करे उससे और दोबारा मेहर दे. Remaining to complete a 3-4 divorce, for example, he said it's twice, then only has one time left. See, मैंने 2 तलाकों के बाद अपनी बीवी को वापस लिया है, तो अब एक तलाक रह गई है वापस. अब एक तलाक पे मेरी उसकी खत्म हो जाएगी, अनलेस कि मैं दोबारा उससे शादी करूं और 3 तलाकें दोबारा बहाल करूं. एंजल जी समझ आ रही है? दिस इज जी द जी, रियलिटी. हाँ हाँ, समझ आ रही समझ आ रही. अच्छा,
When a free man has pronounced a threefold divorce, the divorced wife is unlawful for him to remarry unless she marries another husband in a valid marriage and the new husband has copulated, means had sex with her, which at the minimum means that the head of his erect penis enters fully her vagina. इसकी ट्रांसलेशन मैं नहीं करूंगा, बड़ा गंदा शब्द है, लेकिन इस्लामिक शरा के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक इरेक्टेड पीनस वर्जाइना के अंदर कंप्लीटली पेनिट्रेट नहीं करता दूसरे हस्बैंड से, तब तक वो वापस अपने पहले हस्बैंड के पास नहीं जा सकती. ये हलाला का कॉन्सेप्ट है, सबको पता है. अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट है, forbidding one's wife more than 4 months. 4 महीने तक उसको दूर रखना. Sacred law means that the husband swears that he will not have sexual intercourse with his wife either for a unrestricted period or more than 4 months. क्या है इसके अंदर? 4 महीने तक आप अपनी बीवी को अपने से दूर रखते हैं, क्या है? यानी कि सेक्स नहीं करते. Forbidding one's wife is unlawful, haram hai. It consists in the husband swearing an oath, husband ki qasam by Allah, that for more than 4 months, including oath in which no time period is speculated, means he will not have sexual intercourse with his wife, or swears that he does, then he is obligated to divorce her, fast, pray or something else. अगर वो 4 महीने तक कसम खाता है कि मेरी बीवी के पास नहीं जाऊंगा, तो लाजम है कि वो उसे डिवोर्स कर दे. Bye bye, tata. Husband is not considerable to have forsworn his wife in the above unlawful sense when the forswear sexual intercourse for 4 months or less when is impotent. और अगर वो impotent है तो फिर उसके अंदर नहीं है, इस तरीके से लिया जाएगा. अच्छा जी, इद्दा को छोड़ते हैं. इद्दा में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. There is no waiting period for a woman divorced before having had sexual intercourse. आपने शादी की, निकाह किया, घर नहीं लेके गए बीवी को, पहले ही तलाक दे दी, वेटिंग पीरियड नहीं है. लेकिन अगर घर ले गए और सेक्स कर लिया तो a waiting period is obligatory for a woman divorced after intercourse. इंटरकोर्स कर लिया उसके साथ, अब वेटिंग पीरियड जरूरी है, चाहे whether the husband and the wife are prepubescent, have reached puberty, or one has or other has not. चाहे उनमें से एक प्रीपुबेसेंट है और एक नहीं, या दोनों प्रीपुबेसेंट हैं या दोनों नहीं, या एक है और दूसरा नहीं. इस्लामिक शरा के अंदर सेक्स करने के लिए प्रीपुबेसेंट होना जरूरी नहीं है. 5 साल की बच्ची और बच्चे की शादी कर लो, 5 साल और 15 साल के बच्चे की शादी कर लो, 6 साल की लड़की 50 साल के लड़के की शादी कर लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. इस्लाम पीडोफिलिया को अलाउ करता है और पीडोफिलिया के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. इस्लामिक शरअ. 6 साल की बच्ची की 25 साल के लड़के के साथ शादी कराओ, दोनों ने सेक्स किया, अगले दिन तलाक दी, कोई बात नहीं. अगर इंटरकोर्स होना जरूरी है, अगर वो उसके साथ कमरे में अकेला भी हुआ और तलाक भी दे दी लेकिन उसे इंटरकोर्स नहीं किया, तो कोई वेटिंग पीरियड नहीं. सो इंटरकोर्स होना जरूरी है. जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, इरेक्टेड पीनस का वर्जाइना के अंदर कंप्लीटली दाखिल होना जरूरी है अकॉर्डिंग टू शरिया इस्लामिया. मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करूंगा, बड़ा बुरा लगेगा. वेटिंग पीरियड ऑब्लिगेटरी कब है? अपॉन अ वुमन बिकॉज ऑफ द डिवोर्स ऑफ एनलमेंट, देन इफ शी इज प्रेग्नेंट द वेटिंग पीरियड एंड्स. अगर वो प्रेग्नेंट है, वेटिंग पीरियड खत्म जब वो बर्थ दे देगी, जब वो बच्चा पैदा कर देगी, उसके बाद डिवोर्स फौरन होगी, कोई मसला नहीं. The first is that she has given birth to all she was carrying. जितने भी बच्चे उसके पेट में थे सारों को उसने बर्थ दे दी, डिवोर्स होगी. If carrying 2 or more children, it is necessary that she has given birth to all. 2 या 2 से ज्यादा हैं, सबको उसने बर्थ दी है. Whether she lives or stillborn, चाहे वो जिंदा हो चाहे मरे में हो, and whether fully developed or undeveloped, चाहे कुछ भी हो, doesn't matter. Which midwives swears is beginning of the human form. Whenever there is a less than 6 months period between two births, the babies are considered twins. अगर 6 महीने से के दरमियान में 2 बच्चे पैदा होते हैं तो वो ट्विन्स ही कहलाएंगे. There is no maximum number that may be born. ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी बच्चे पैदा कर लो, कोई मसला नहीं है, सारे के सारे अगर एक ही प्रेगनेंसी में कहलाएंगे. The second condition is that if the child is from the husband when the waiting period is
For if the woman is pregnant from the committing adultery or from a marriage which is invalid, after which the husband divorces, the waiting period does not end when she gives birth, but rather she completes the waiting period of a woman who has been divorced. Like, forget that, yaar. Yes, adultery में हम देख चुके थे. The minimum duration of a pregnancy from which a live child is born is 6 months. कम से कम पीरियड जो है जो बच्चा पैदा होने का है वो 6 महीने है. While the maximum is 4 years. जबकि ज्यादा 4 साल है. इमाम शाफी के मुताबिक 4 साल तक औरत हामिला रह सकती है. 4 साल का हमल. ऐसा भी होता मिरेकल है हो गया क्या? है तो. अल्हम्दुलिल्लाह साहिल भाई, वेलकम बैक. जाग गए. ये इतना बड़ा मिरेकल सुन के मैं जाग गया. भाई 4 साल का हमल मैंने जैसे कि बताया था पहले भी आपको, लेकिन अब शरा में से भी दिखा रहा हूँ, हर जगह से दिखा रहा हूँ. ये कोई भाई कह कौन रहे हैं से साइंस ग्रह के रेफ्रिजरेटर. लोग हैं ये इतनी अच्छी साइंस बताते हैं. फिर भी मोहम्मद को हलाली कैसे साबित करेंगे? यू नो दैट राइट? तो वाह, मोहम्मद को हलाली साबित करने के लिए 4 साल का हमल रखना जरूरी है ना इमाम शाफी के मुताबिक. बिल्कुल तो सही. साहिल भाई देखिए, मैं आप मुझे कहते थे कभी भी कि यार एरम तू इतना गुस्से में क्यों रहता है इन मुमिनों के साथ. यार मैं कैसे ना रहूं. जिस बंदे ने इतना पढ़ के इंग्लिश स्ट्रीमों में सब कुछ दिखा दिया हो, उसको तब क्यों ना चढ़े जब ये मोमिन आके अजीब अजीब बातें करते हैं. मुझे खुद सोच के बता यार. क्योंकि दिमागी अपंग होते हैं ना, जो दिफा करने वाले होते हैं वो दिमागी अपंग होते हैं. जिसका दिमाग सही सलामत चल रहा हो वो ये सब बातें सुन के मोमिन रह ही नहीं सकता. अभी जो मैंने डिवोर्स की बाकी कंडीशन बताई है, सोच के जो कोई फीमेल आज के बाद अगर शरिया मांगे मेरी ये स्ट्रीम देख के, दुर फिट है मुंह उसके ऊपर जो अभी मैंने बताई है फीमेल्स की. मैं आज हैरान तो होता हूँ. वैसे भी एक विकेट गिर चुका है. शायरा जी जो आई थी उनका विकेट तो गिर गया है. बेशक, आई थिंक सो. लेट्स सी नेक्स्ट टाइम वो आके क्या बात करती हैं. आई विल वेट फॉर हर. If a woman is not pregnant and has menstruation period, her waiting period ends when 3 intervals begins. 3 interval की क्या जरूरत है मुझे नहीं पता, आज तक किसी को पता नहीं लग सका, क्योंकि मोहम्मद को शायद पता नहीं था कि एक पीरियड्स में ही बच्चा नहीं आता. Menstruation have finished. A part of interval between that, forget that. इसको भी छोड़ते हैं. इसको भी छोड़ते क्योंकि हैं. प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं होते थे ना वो टाइम पे. लेकिन यार एक एडम पीरियड साहब, काफी होता है ना यार. एक पीरियड काफी होता है. लेकिन 4 साल का हमल है, लिहाजा फिर एक पीरियड से ज्यादा भी चलता है, क्योंकि इमाम शाफी अपनी कुतुब के अंदर लिखते हैं, इमाम कुर्तुबी भी लिखते हैं कि हमल के दौरान भी पीरियड्स आते हैं. बाय द वे, आपको पता है इस बात का? नहीं ये नहीं पता था. दौराने ये हमल इतनी भी सारी पीरियड्स आते अच्छी हैं. अच्छी साइंस कभी नहीं पता थी हमको. दौराने ये हमल भी पीरियड्स आते बीमारी है. ये साइंस नहीं, ये बीमारी होता है. ठीक है, हैं. दिमाग अगर हमल के दौरान मतलब पीरियड्स आ रहे तो ये कोई मतलब खतरे की घंटी है, ना कि कोई अच्छी चीज है. यार क्या लॉजिक है. बाय द वे, जो खून होता है वो बच्चे की खुराक होता है, ये भी इस्लाम हमें बताता है. लेकिन बहरहाल साइंस जो है ना वो इस टॉपिक पे भाग जाती है. किसी दिन करूंगा. मैं शरिया को छोड़ना नहीं चाहता इस वक्त, मैं बताना चाहता हूँ कुछ चीजें. The waiting period of a woman who does not menstruate, whether pre-pubescent or post-pubescent, post-menopause, is 3 months. अब pre-pubescent के अंदर प्रॉब्लम ये है कि उसे पीरियड आ ही नहीं रहे, लिहाजा 3 महीने. लेकिन मोहम्मद को ये पता नहीं था कि pre-pubescent जो बच्चियां होती हैं वो बच्चा पैदा ही नहीं कर सकती, लिहाजा 3 महीने वेट करने की जरूरत ही नहीं है. और जिनको मेनोपॉज स्टेट में पहुंच गए कि उन्हें अब पीरियड्स आने ही नहीं है, उनका भी बच्चा नहीं हो सकता. लेकिन मोहम्मद की साइंस को ये पता ही नहीं था, लिहाजा उन सब के भी 3 महीने. If a woman normally menstruates but her periods are stopped for some reason such as breastfeeding or like, or without apparent reason, then she must wait until the age of menopause, after which her waiting period is 3 months. Woman must wait 9 months, and if neither pregnancy nor menses appears, she is considered to be menopausal and her waiting period is done. अच्छा, इसको छोड़ते हैं, कोई मसला नहीं है. लॉजिंग ऑफ वुमेन वेटिंग इसको भी छोड़ते हैं, इसको भी छोड़ते हैं, इसको भी छोड़ते हैं. ये देखिए, the husband of a woman who bears a child
is considered to be a child of the father, whether it is possible that the child could be, meaning that the woman gave birth to a child 6 months plus a month after the marriage agreement, or she gives birth to it less than 4 years, from which she and her husband could at least have possibly met and had sexual relationships. 4 साल तक अगर एक लड़की से उसका हस्बैंड दूर रहा है और उसने बच्चा जन्म दिया है तो वो उसी लड़के का है। साहिल साहब शादी करो, इस्लामिक शरिया, जहाज पे चले जाओ, 3 साल बाद वापस आए हो, बीवी ने बच्चा जन्म दिया है, तुम्हारा ही है, पुट लो जो पुटना। वाह क्या बात है। Even if they were living at a distance from one another, and even if the husband does not know whether he had sexual relationship with her, bye bye, पुट लो जो पुटना। इसी वजह से मेरे ख्याल से तारिक जमील साहब का एक वीडियो है ना जहाँ पे वो कहते हैं कि आपकी शादी फोन पे हो गई है और वाइफ को अगर बच्चा हो गया तो वो उसी का माना जाएगा। एग्जैक्टली, इस्लामिक शरिया के मुताबिक उसी का। अच्छा तारिक जमील या तारिक मसूद साहब कहते हैं यार, वो तो 4 मेरे शादियों हिसाब- 4 शादी एक्सपर्ट कहते हैं, तारिक मसूद 4 शादी एक्सपर्ट बोलता है। जी, तो यहाँ पे तो थोड़ा बहुत लड़की का फायदा है एक हिसाब से।